Hello students, very good morning. All of you warmly welcome in this YouTube channel that has been planned to provide you online classes in English. Students, from today we are going to start third chapter in your supplementary book Snapshots. Third chapter is Ranga's Marriage. That is written by Masti Venkatesh Iyengar. So before we start the chapter Ranga's Marriage, that is really very entertaining, very interesting, full of humor. Let us talk about the author, Masti Venkatesh Iyengar. Masti Venkatesh Iyengar, 6 June 1891 to 6 June 1986, was a well-known writer in Kannada language. He was the fourth among Kannada writers to be honored with the Jnanpith Award, that is the highest literary honor conferred in India. He was popularly referred to as Masti Kannad Asti, which means Masti Kannad's treasure. He is most renowned for his short stories. He wrote under the pen name Srinivasa. Born in Masti village of Kolar district, his pseudonym is as popular as his native village. He started composing stories in his student days. A master storyteller, he had a unique relationship with the genre of literature and was therefore aptly called the Brahma of Kannada stories. Sometimes he is also called as forefather of short stories. His works carry the best element of literature in story form with their inimitable language, narrative language and theme. He was honored with the title Raj Sevasakta by then Maharaja of Mysore, Nalwadi Krishnaraj Wadiyar. After leading an exemplary life in which he succeeded in placing Kannada brilliantly on the literary atlas of India, Masti passed away in 1986. And the story Rangna Madiv, that is translated in English as Ranga's Marriage, was his first short story. So, let us talk about the first short story of Masti Venkatesh Iyengar, that is Ranga's Marriage. Masti Venkatesh's first short story translated into English is a narrative of language and imperialism invading the rural setting of Hosahalli, that is a small village in Mysore. Ranga's Marriage is an interesting story of how a person manipulates to get a young boy married to an 11-year-old girl in a village. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि किस प्रकार से एक लड़के को एक 11-year-old गर्ल से, जो कि गांव की है, 11-year-old है गर्ल, उससे शादी करने के लिए कितने मैनिपुलेशन करने पड़ते हैं एक व्यक्ति को, इसकी बहुत ही गजब की डिपिक्शन किया है मस्ती अयंगर साहब. The story dates back to the
early days of British rule when English was not used in a big way. स्टोरी की बात करें तो स्टोरी हमें इंग्लिश रूल के या ब्रिटिश रूल के उन दिनों में ले जाती है जिसको हम ब्रिटिश रूल के अर्ली डेज कह सकते हैं, जबकि इंग्लिश हर जगह कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज नहीं थी. एट दैट टाइम रंगप्पा, हु वॉज द सन ऑफ अ विलेज अकाउंटेंट, रंगप्पा जो कि गांव के अकाउंटेंट का बेटा था, he turns to be among the first of the rare breed of village folk who left the Hosahalli and was sent to Bangalore to study. गांव के अकाउंटेंट का बेटा रंगप्पा गांव के उन रेयर ब्रीड के विलेज फॉक्स में से एक था जो कि अपना गांव छोड़ के बेंगलोर जाता है पढ़ने के लिए. चूंकि सिंस when Rangappa went to study in Bangalore, in those days it was not common feature for the villagers. So the villagers were not well familiar with the fact that after getting education, what changes will occur in the person. लोगों को कुछ समझ में नहीं आता था कि आखिर अगर ये लड़का गांव जा रहा है, गांव से शहर जा रहा है पढ़ने, तो क्या जब ये वापस आएगा तो ऐसा ही रहेगा या इसमें चेंजेस हो जाएंगे, ये बदल जाएगा. यही कारण था कि जब वो वापस आता है 6 महीने बाद, हिज होम कमिंग आफ्टर 6 months मेक्स अ बिग इवेंट. उसकी 6 महीने बाद घर वापसी एक बड़ा इवेंट के रूप में सेलिब्रेट की जाती है गांव में, क्योंकि जब वो आता है वापस तो लोगों को लगता है कि अब वो तो एजुकेटेड पर्सन बन के आ रहा होगा, तो उसमें ढेर सारे चेंजेस आ गए होंगे. दैट इज वाई व्हेन ही कम्स, लोग अच्छी खासी मात्रा में एक लोगों की बड़ी बड़ी भारी भीड़ उसके घर के सामने इकट्ठा हो जाती है. When he returns to his home after 6 months from the city, a huge crowd gathers at his doorstep. People's expectations to see a different person altogether. लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि अब वो एक डिफरेंट पर्सन को देखेंगे, and that expectations are valid when the young man returns in the same flesh and blood. लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पानी फिर जाता है जब वो अपने सामने उसी व्यक्ति को देखते हैं जिसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ. तब पढ़ाई लिखाई करने से क्या फायदा. गांव के लोगों को तो ये लगा होगा भाई, उनको ये नहीं लगता है कि वो ये समझ नहीं पाते कि एजुकेशन व्यक्ति के चेहरे पे या उसकी बॉडी पे, उसके फ्लेश पे, उसके ब्लड पे कोई चेंज, कोई इफेक्ट नहीं करता. The curious villagers gathered outside Ranga's house to see how much the boy had changed. जो क्यूरियस गांव के लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं रंगा के घर के बाहर ये देखने के लिए कि उस लड़के में क्या क्या चेंजेस हुए हैं. एंड दे आर सैडली डिसअपॉइंटेड, और वो बुरी तरीके से डिसअपॉइंट होता है. द नरेटर, जो कि इस स्टोरी का पूरा करता धरता है, उस रंगप्पा नाम के व्यक्ति की शादी कराने का पूरा मैनिपुलेटिव जॉब इसी व्यक्ति के हाथों में होता है.
इसको हम नरेटर कह रहे हैं। The narrator discusses the issue of marriage with रंगा। आप इस स्टोरी में देखेंगे कि जो नरेटर है वो रंगा से शादी के मामले में डिस्कस करता है। He is piqued to hear his ideas about marriage। लेकिन जब वो रंगा की आइडियाज को सुनता है मैरिज के बारे में, उसे काफी निराशा होती है। He resolves to get the boy married to a very young and immature 11-year-old girl, Ratna. एक तरफ on one hand he gets disappointed with his ideas. At the same time he resolves that anyhow he will do to manage this boy to get married with a girl whose name was Ratna, who was just 11-year-old. And to accomplish that job, he makes many manipulations. For this job, he seeks the support of Shastri's astrology to bring Ratna around. वो इस काम को करने के लिए शास्त्री जी के एस्ट्रोलॉजी का भी यूज करता है और उसके पूरे प्रपंच में रंगा फॉरगेट्स हिज आइडियलिज्म एंड सेटल्स डाउन हैप्पीली। वो अपनी सारी आइडियलिज्म को भूल जाता है और अल्टीमेटली हैप्पीली वो जो है सेटल डाउन हो जाता है। So in this way, the narrative that I made regarding the introduction of the story, you can see that you are going to see many colors of the writer Masti Venkatesh Iyengar. But before that, we are to take resolution. We are to resolve to have patience, because the story is written in a different way. ये कहानी एक अलग तरीके से लिखी हुई कहानी है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और हाँ, हंसने के लिए तो खूब तैयार होकर बैठिए, because really the story is very humorous. But only if you will pay your full attention, because literary humors are not to be understood easily. To understand and to laugh at these humors, you are to use your skills, your sense of humor, your understanding, and no doubt your thinking capacity. So let us start this story. Please open your book on page number 16. Ranga's Marriage by Masti Venkatesh Iyengar. Ranga, the accountant's son, is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. When he returns to his village from the city of Bangalore, the crowds mill around his house to see whether he has changed or not. His ideas about marriage are now quite different, or are they the same? Okay, so this is the introduction part that has been given in the book. Though I have made an elaborate introduction of the story, but the introduction that has been given over here, that tells that रंगा जो कि गांव के अकाउंटेंट का बेटा है, वो उन रियर ब्रीड गांव के उन रियर ब्रीड में से एक है जो कि अपनी स्टडीज़ को परसू करने के लिए शहर जाता है,
जब वो वापस आता है अपने गांव बेंगलोर से वापस, तो क्राउड उसके घर के चारों तरफ इकट्ठा हो जाती है और ये देखने के लिए वेदर ही हैज चेंज्ड और नॉट, हिज आइडियाज अबाउट मैरिज। और बातचीत करने के बाद यू विल फाइंड आउट कि उसके जो आइडियाज हैं मैरिज के बारे में वो एकदम से डिफरेंट है। Let us start the story. When you see this title, some of you may ask, Ranga's marriage? Why not Rangnath Vivah or Rangnath Vijaya? Yes, well, yes, I know I could have used some other mouth-filling one like Jagannath Vijaya or Girja Kalyana. But then, this is not about Jagannath's victory or Girja's wedding. It is about our own Ranga's marriage and hence no fancy title. So you can find out that in the opening line of the story is really full of humor. The author says that whenever you observe this title, that is Ranga's marriage, you may make an inquiry why such marriage or why such title has been used. जब आप टाइटल देखते हैं तो आप में से कोई पूछ सकता है भाई कि आखिर रंगास मैरिज ही टाइटल क्यों रखा गया, रंगनाथ विवाह क्यों नहीं रखा गया, रंगनाथ विजय क्यों नहीं रखा गया। वेल यस, हाँ ठीक है, मुझे पता है, आई नो दैट whenever I was deciding title, I could use other titles that were more mouth-filling, like जगन्नाथ विजय और गिरजा कल्याण। उस समय हम थोड़ा सा और अधिक दूसरी टाइटल यूज कर सकते थे, जैसे कि जो कि माउथ फीलिंग थी, ऐसे जगन्नाथ विजय था या गिरजा कल्याणम था। बट तब क्या होता, बट देन भाई मैटर ऑफ फैक्ट इज दैट ये कोई फैंसी टाइटल नहीं है, कि ये कोई फैंसी टाइटल है ही नहीं, ये तो एक फैक्चुअल जो है टाइटल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस स्टोरी में हम जगन्नाथ विक्ट्री या गिरजाज वेडिंग के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं। इट इज अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज। भाई ये तो हमारे अपने रंगा की शादी की कहानी है, और चूंकि अगर रंगाज मैरिज की कहानी है, इफ इट इज द स्टोरी ऑफ रंगाज मैरिज, आवर ओन रंगाज, देन वी कैन नॉट यूज एनी अदर फैंसी टाइटल। जब ये एक फैक्चुअल अपने रंगा की मैरिज की बात है, तो कोई फैंसी टाइटल हम कैसे यूज कर सकते हैं? अरे भाई, होसाहल्ली इज आवर विलेज, हमारे गांव का नाम होसाहल्ली है। आपने सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट। नहीं सुना? नो? ओहो, व्हाट अ पिटी, कितनी पिटी की बात है कि आपने हमारी गांव की गाना नहीं सुना। लेकिन भैया, इफ यू हैवंट हर्ड द नेम ऑफ माई विलेज, देन इट इज नॉट योर फॉल्ट। ये आपकी गलती है ही नहीं। क्यों? बिकॉज देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक। क्योंकि हमारे गांव का नाम किसी ज्योग्राफी की बुक में नहीं मिलेगा आपको। Those sahibs in England writing in English probably do not know that such a place exists. वो साहिब लोग जो इंग्लैंड के हैं ना, जो अंग्रेजी में हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की किताबें लिखते हैं, शायद उनको भी नहीं पता होगा कि ऐसा कोई स्थान है भी। Even they don't know probably that there is any place in existence like Hosahalli. And so, since they had no information about our village, that is why they did not mention the name of my village in the geography book.
उनको पता ही नहीं कि हमारा गांव भी है इस दुनिया में। Since they have no information about our village, so they didn't mention it about it. Our own people too forget about it. और यहाँ तो भाई वो तो अंग्रेज लोग हैं, इंग्लैंड के लोग हैं, वो लोग भूल गए तो भूल गए, हमारे अपने लोग भी भूल गए। यू नो हाउ इट इज, आपको तो पता है ना कैसे होता है ये। दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप। ये जो हमारे यहाँ के जो इंडियन राइटर्स हैं वो भेड़ के झुंड के तरीके हैं। आपने भेड़ की कहानी सुना होगा ना, भेड़ की बातें तो पता ही होगा, भेड़ लोग कैसे ही बिहेव करते हैं। वन शीप वॉक्स इनटू अ पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट। जिस रास्ते से एक भेड़ जाती है और वो उस रास्ते से जाकर के एक गड्ढे में गिर पड़ती है, भले ही वो गड्ढे में गिर जाए लेकिन दूसरी भेड़ें भी उसी भेड़ को फॉलो करती हैं। हमारे यहाँ के जो इंडियन राइटर्स हैं ज्योग्राफी के या अदर सब्जेक्ट्स के, वो एकदम भेड़ की झुंड के तरीके हैं। वो अपना कुछ नहीं यूज करते, वो एकदम वही लिखते हैं जैसा कि इंग्लिश के जो राइटर्स हैं वो लिख के गए हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सरकेज़म है, व्यंग है, सरकास्टिक कमेंट है कि भाई अगर इंडियन राइटर्स, भाई इंग्लैंड के जो राइटर्स हैं उन्होंने जो लिखा दैट्स अनदर मैटर, उनको तो पता ही नहीं इंडिया के बारे में ना। आप तो इंडिया के हो, आप इंडिया के राइटर्स हो, इंडियन राइटर्स हो, तो जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो आप तो दुनिया के सामने लाओ। लेकिन नहीं, आप भी ब्लाइंडली फॉलो करते हो, इंडियन राइटर्स भी ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। जो बातें इंग्लिश राइटर्स ने लिखी हैं उन्हीं बात को इन दिस वे और दैट वे एक्सप्रेस कर देते हैं। तो एक बहुत बड़ा सरकास्टिक कमेंट है अबाउट इंडियन राइटर्स। ओके, तो वही कह रहे हैं व्हेन बोथ, तो दोनों लोग, द साहिब्स इन इंग्लैंड, वो जो इंग्लैंड के साहिब लोग थे वो, एंड आवर ओन जोग्राफर्स, और हमारे अपने जो जोग्राफर्स है वो, दे हैव नॉट रिफर टू इट, उन लोगों ने रिफर नहीं किया। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप। आप उस बेचारे कार्टोग्राफर से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो मैप पे उसको मेंशन करेगा? एक्सप्रेस कर सकते हैं? कैन यू? नहीं भाई, नहीं एक्सप्रेस कर सकते, क्योंकि कार्टोग्राफर जो होता है वो तो उन्हीं चीज़ों को मैप पे एक्सप्रेस करता है ना जो बुक में लिखी हुई। एंड सो, और चूंकि इंग्लैंड के साहिब लोगों ने मेंशन नहीं किया, फिर इंडियन जोग्राफर ने मेंशन नहीं किया, फिर कार्टोग्राफर ने मेंशन नहीं किया, तो देयर इज नॉट इवन द शैडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप। यही कारण है कि किसी भी मैप पे हमारे गांव की का शैडो भी नहीं है। तो भैया हमारे गांव का नाम है, सो माई विलेज नेम इज होसाहल्ली। सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं कहीं और शुरू किया और दिशा बदल दिया, कहीं किसी और रास्ते चल दिया। If the state of Mysore is to Bharatvarsh, what the sweet Karigadabu is to a festive meal। भाई देखो, होसाहल्ली जो गांव है वो मैसूर राज्य में है। अगर मैसूर राज्य को हम भारतवर्ष का नाम दे दें तो जो मैसूर राज्य की मिठाई है करिगा दाबू, देखिए जो करिगा दाबू है ना, ये साउथ इंडियन फ्राइड स्वीट होती है, इसमें जो है कोकोनट और शुगर भरा होता है। तो वहाँ की जो मिठाई है करिगा दाबू, वो क्या बन जाएगी? वहाँ की फेस्टिव मील बन जाएगी। और तब देन होसाहल्ली इज टू मैसूर स्टेट वॉट द फीलिंग इज टू द करिगा दाबू। और तब अगर होसाहल्ली जो है वो मैसूर स्टेट बन जाता है तो जो फीलिंग है
वॉट द फीलिंग इज, वो करिगादाबू की जो फीलिंग है वो क्या होगी, आप समझ सकते हो। वॉट आई हैव सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू। भैया मैंने जो बताया ना आपको वो एकदम सही है, बिलीव मी, मेरा विश्वास करिए, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, वॉट एवर आई एम टेलिंग दैट इज एब्सोल्युटली राइट। I will not object to your questioning it, but I will stick to my opinion. No, if you have any cross question, you can ask. अगर आपके दिमाग में कोई क्रॉस क्वेश्चन है भैया आप पूछ सकते हैं, लेकिन मेरा जो ओपिनियन है मैं उसको चेंज नहीं करूँ, ये मेरा ओपिनियन है एंड आई विल रिमेन स्टिक ऑन माई ओपिनियन। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली आप होसा ओनली। बता दूं मैं होसा हल्ली के बारे में ग्लोइंगली बोलने वाला मैं कोई अकेला इंसान नहीं हूँ। वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस, हिज नेम इज गुंडा भट्ट। पता हमारे गांव में एक डॉक्टर है जिसका नाम है गुंडा भट्ट। ही एग्रीज विथ मी, उनका भी वो भी मेरी बातों से एग्री करते। ही हैज बीन टू अ क्वाइट फ्यू प्लेसेस। In his lifetime he has traveled a lot, बहुत जगह देखे हैं वो। नहीं इंग्लैंड नहीं गए, नो नॉट इंग्लैंड। इफ एनीवन आस्क्स हिम वेदर ही हैज बीन देयर, अगर कोई उनसे पूछता है कि भैया आप डॉक्टर साहब आप कभी इंग्लैंड गए, तो वो कहते हैं नो अन्नैया, आई हैव लेफ्ट दैट टू यू। नहीं अन्ना, मैंने वो प्लेस तुम्हारे लिए छोड़ रखा है, तुम जाइएगा इंग्लैंड। और हम 6-7 गए हैं लेकिन इंग्लैंड नहीं गए। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टेड डॉग इज नॉट फॉर मी। ये फ्ली पेस्टेड डॉग की तरह यहाँ वहाँ दौड़ना मेरा काम नहीं है। दैट इज यू टू डू, आप जाओगे वहाँ पे। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, दो मैंने भी अपने टाइम में कुछ स्थान देखे हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज सीन मैनी। सच्चाई ये है कि उन्होंने कई जगहों को देखा है। सो स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी हैव सीन Ranga's marriage. Ranga, his village Hosahalli, his state Mysore, and the sweet Karigadabu and the doctor Gundabhat. The story will remain continued in the next class. By then, thank you. Have a nice day.